لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقیناً آپ لوگ مغربی سے بیٹھے ہیں اور اس وقت سے لے کر اتنا طویل وقفہ بیٹھے رہنا یہ جو ہے بہت قیمت کی بات ہے. بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا آپ لوگوں کا. ماشاء اللہ ابتدا ہی سے جو کارکردگی بچوں نے پیش کی ہے یقیناً اساتذہ کی محنت اور ان طلبا کی محنت کا یہ ثمرہ اور اتنے حسین اور پیارے انداز میں کہ بچے دعائیں مکالمہ اور تقریر اتنی عمدہ انداز میں پیش کر رہے تھے تو اب یوں لگ رہا تھا کہ یہاں کی گلیاں کم پڑ جائیں گی خطبہ زیادہ ہو گیا. اور پیارے انداز میں کہ پرانے مقررین کی بھی آپ کہانی بھی کوئی غلام نبی سبحانے کے انداز میں ہے تو کوئی حقانی کام بھی کرتا ہے. بڑے پیارے انداز سے سلافت کے ساتھ زندگی کے ساتھ جو ہے ضرورت کے تحت جو عناوین ہیں اس کے اعتبار سے ان لوگوں نے تقریر کی. بہت خوشی ہوئی اور ساتھ محلے کے تمام افراد جس ادارے سے محبت کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ماتوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی گئی محنتیں اور ان کے اختیار کس قدر کارگر ہو رہے ہیں. ایسی بستی میں جو شہر سے کنارے جسے عام زبان میں جو ہے کچی بستی کہا جاتا ہے اس علاقے میں اس طریقے کی جو ہے جنگل میں مدد جسے کہتے ہیں وہ سما یہاں پر موجود ہے. الحمدللہ آج نوجوان نسل جس تیزی کے ساتھ گناہوں کی جانب بڑھ رہی ہے اور جس میں اہم کردار انٹرنیٹ اور موبائل ادا کر رہا ہے اس علاقے کے شہر کے لوگ اس قدر بیدار نہیں ہوئے ہیں جتنا آپ لوگ بیدار ہوئے اس پر مکالمہ پیش کر دیا. یقیناً یہ جو ہے ان ذمہ داروں کی اساتذہ کی دراندیشی ہے کہ تمام امور پر وہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں انہیں اس محلے کے تمام بچوں کی بڑی فکر ہے. بچے اس تیزی کے ساتھ موبائل کی دنیا میں ڈوب رہے ہیں یقیناً اس سے مثبت کام کم اور منفی کام زیادہ ہوتا ہے. اور میں نے یہ محسوس کیا اتنے وقفے میں کہ اگر آپ لوگ ادارے کے ذمہ داران کا اساتذہ کا اس سے بڑھ کر ان کا تعاون کرتے رہیں گے ان کے تقاضے اور ضروریات کو پوری کرتے رہیں گے تو اس سے بھی کئی گنا تعداد انہیں زیادہ کر کے لیے جو آپ کے سامنے جو اس کا نتیجہ انشاءاللہ پیش کریں گے. آپ لوگ یہ معاشی اعتبار سے سبق دوش کر کے دیکھیں جو ہے ہمارے یہاں کے جو استاد ہیں آپ کے خطیب امام ہیں مفتی عبداللہ صاحب ہیں ان کی ٹیم ہے رکا ہے مسجد کے جو ذمہ داران ہیں کافی متعلق اور فعال افراد ہیں. ابھی اہل محلہ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ انہیں ان کاموں کے حوالے سے قائم البال کر دیں اور مادی اعتبار سے ان کو جو کچھ ضرورتیں ہیں وہ آپ یہ لا کر فراہم کریں. جس طریقے سے انسان جو ہے دیگر اور غلط چیزوں کے حوالے سے اکٹھا ہو کر تعاون کرتا ہے اس کے لیے افراد بھی اکٹھا کر لیتا ہے اور لوگوں کی بھی ذہن سازی کر لیتا ہے. نیکیوں میں ہم کیوں پیچھے رہیں؟ نیکیوں کے حوالے سے ہم یہ ماحول بنائیں کہ ہم اس ادارے کو مضبوط کریں ان کے افراد کو مضبوط کریں تاکہ آپ جب انہیں مضبوط کریں گے اپنے اسلام کو بڑھائیں. اسی کے ساتھ دوسری خوشخبری تو یہاں پر میں نے یہ بھی سنی ہے کہ الحمدللہ اس علاقے میں بچیوں کا بھی ادارہ چل رہا ہے اور بچیاں پڑھتے ہوئے درجہ عالیہ سے اب جو ہے انشاءاللہ بخاری شریف کا آغاز ہونے والا ہے. یعنی ابھی اگلے سال آپ کی اس علاقے سے ختم بخاری بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. کوئی شخص اس بات سے یقین ہی نہیں کرے گا کہ اس علاقے میں اتنے سارے کام ہو رہے ہیں. یہ مواقع میسر ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور جو بیچارے خلوص دل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ظاہری کچھ رکاوٹیں ہیں. وہ بڑی رکاوٹیں نہیں پر آپ لوگوں کا ان کو جو ہے ساتھ چاہیے. اہل محلہ کا ان کا تعاون چاہیے. آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں مادی اعتبار سے معاشی اعتبار سے انہیں استحکام پہنچائیں. بچیاں چونکہ جو فضیلت میں چلی گئی ہے ختم بخاری میں آ رہی ہے بخاری شریف کا درس شروع ہو رہا ہے یقیناً اخراجات اور ان کے بڑھ جائیں گے
गाजी ने जो कोट दिया है इस अंदाज में, एक तालिब इल्म जब दीन के हुसूल के लिए जो निकला हुआ तालिब इल्म जो है, अगर उसका गुजर किसी जगह से हो जाता है, किसी इलाके से, किसी मोहल्ले से हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इलाके के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा देता है। कितनी कसरत से आपके इस इलाके में तलबा पढ़ रहे हैं, बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए कितनी बरकतों के नुज़ूल का सबब बन रहे हैं, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इनकी अहमियत और फजीलत के कुरान करीम में जो है आयत बय्यिनात मौजूद हैं, अहादीस मुबारका मौजूद है। कहीं पर भी असली उलूम पढ़ने वाले के हवाले से कोई फजीलत का जिक्र, फजीलत नहीं मिलती है, लेकिन एक आलिम दीन, एक हाफिज़ कुरान के हवाले से जो है फरागिल मौजूद है। ये दुनिया में भी हमारी इज्जत का बाइस है, आखिरत के हवाले से भी हमारी सुरखुरी का बाइस है कि बच्चे जब इस शान से निकल रहे हैं, मदरसे के लिए निकल रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह पर मुसाफिर है। और इस दौरान हुसूल इल्म के हवाले से इस दौरान अगर उसकी मौत वाक़ हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शहादत का दर्जा अता करता है। इसीलिए हम छोटे बड़े के लिए ये रखा गया है कि आखिर वक्त तक इल्म दीन हासिल करने की तलब रखे, तड़प रखे और सीखता रहे। इसलिए इस दौरान जिंदगी के किसी भी लम्हे में अगर इंसान की मौत आएगी तो शहादत का दर्जा होगा। साथ ही साथ देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तलबा का, इल्म दीन हासिल करने वालों का एजाज़ किस अंदाज में करा रहा है कि जब ये निकल रहे हैं तो किसी दुनियादार से इनका एजाज़ इकराम नहीं करा रहा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मासूम फरिश्तों से इनका एजाज़ करवा निकल रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के मासूम फरिश्तों के लिए अपनी करों को दिखाते हैं। ये इलाज का काम है हमारे लिए। साथ ही साथ ये बच्चे दुनिया और आखिरत दोनों जगह सुरखुरी का बाइस हो रहे हैं इस अंदाज में कि कल बरोज़ महशर जब हश्र का मैदान कायम किया जाएगा, उस वक्त कुछ ऐसे अफराद होंगे जिनके लिए आला किस्म के जो है तख्त का नज़्म किया जाएगा, उनके लिए नूरानी ताज रखे जाएंगे। अहले महशर इस हवाले से सोच रहे होंगे कि यकीनन ये कोई नबी होंगे या कोई वली होंगे, लेकिन उन्हें बताया जाएगा ना ही ये कोई नबी है ना ही ये वली है, बल्कि ये वो खुश नसीब अफराद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। तो आप अंदाजा लगे दुनिया में भी आपकी इज्जत हो रही है, आखिरत में सुरखुरी का बाइस हो रहे हैं। और तलबा जब इल्म दीन हासिल करते हैं, कुरान करीम का इल्म हासिल करते हैं, उसे अपने सीने में महफूज रखते हैं, तो आज जो है ऊंची ऊंची इमारतें हम देखते के हवाले से जब देखते हैं और उसके हवाले से बयान करते हैं कि मौजूदा वक्त में बुर्ज खलीफा काफी ऊंची इमारत है। अगर कोई शख्स गया तो उसकी फजीलत बयान करता है, उसके मंजरों को बयान करता है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतना उसका ये मर्तबा है, उसका मकाम ये, वहां पर मैं होकर आया हूँ। आइए तो दुनियावी बात है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, उससे बढ़कर कोई दूसरा बना लेगा, उसकी भी हैसियत खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे मुझे के हासिल करने वालों, कल तुम्हारा एजाज अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अंदाज में करेगा कि तुम्हें हुक्म देगा कि आयत बय्यिनात पढ़ते जाओ, तुम्हारा दर्जा बढ़ता जाएगा और तुम्हारा आखिरी दर्जा वो होगा जहां तुम्हारी आयतें खत्म होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। जिसकी कोई हद नहीं होगी, कितनी ऊंची इमारतें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए अता करेगा, तुम्हें इनात अता करेगा। हमारी पढ़ी हुई आयतों के एतबार से हमारे दर्जात बुलंद होते चले जाएंगे। और आलिम दीन की शान, हाफिज़ कुरान की शान क्या है? किस अंदाज में है कि अपने घर के उन अफराद के हवाले से जिनके हवाले से जहन्नम लाज़िम हो गई है, उनकी ये बच्चे, ये उलमाए किराम, ये उस्ताद किराम उनकी शफाअत करवाओ। दुनिया मुंजिब में है। आज का वक्त तो जिस एतबार से नाजुक हो चुका है, दीनी इल्म बहुत जरूरी है। आज इंसान ये सोचता है कि घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील रहना चाहिए, लेकिन आज की जरूरत ये कि हर एक घर में एक आलिम दीन जरूर रहना चाहिए। हिफाजत करे, अकीदे की हिफाजत करे, हमारी दुनिया को भी संवारे और आखिरत में हमारे लिए बख्शिश का वो सामान। इसलिए हर एक घर की ये जरूरत है, अशद जरूरत है कि एक आलिम दीन रहे, हाफिज़ कुरान रहे। तो आपके महल्ले में इसका तलबा की कसरत है, बच्चे हैं जो इल्म दीन को हासिल कर रहे हैं। हर एक घर के फर्द के लिए, हर एक घर के सरपरस्त की ये जिम्मेदारी
हल्के सुनिया गया। और यकीनन इनकी मेहनतों का अंदाजा लगाएं कि किस अंदाज में मेहनत कर रहे हैं कि जहाँ पर भी पौधा लगता है और ये पौधा फिर जब ये बीज लगाई जाती है, पौधे की शक्ल में जब ये निकलता है, हंफिया सुनिया में आता है, तो तनावर दरख्त तो बनकर इस अंदाज में सामने आता है कि हाफिज शाबान की तरह एक कशिश में करके कुरान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। यही का वो तालिब इल्म था। इसी गरीब बस्ती से निकला, एक मामूली से छोटे से घर से निकला और फिर यहाँ पर उसने दाखिला लिया, इब्तिदाई तालीम हासिल की। यहाँ की तालीम मुकम्मल करने के बाद हनफिया सुन्निया में आया, हिफ्ज़ कुरान किया और फिर इसी साल पढ़ते हुए ही 20 पारे का हाफिज हुआ। हमारी एक मस्जिद बनी थी, मस्जिद आसनुल उलमा, उसी 20 पारे पर मैंने उसको खड़ा कर दिया और 20 पारे का पढ़ रहा है और तालिब इल्म ही है और 20 पारा उसने सुना दिया। और उसके बाद अगले साल आपकी इस मस्जिद में उसने जो है पूरा कुरान सुना। अभी फरागत नहीं हुई है, 2 तरावी सुना चुका है, इस साल फरागत होने वाली है, उससे पहले खत्म कुरान एक नशिस्त में सुना। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे आगे दीन पढ़ रहे हैं, और भी बच्चे हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं, इन्हीं के पढ़े हुए। और बच्चा इसी मदरसे से पढ़ा, अब्दुल मुत्तलिब नाम है, सलीम भाई का बच्चा है, वो भी हाफिज कुरान हो गया, दिल्ली में जाकर और तरावी सुना चुका है, अभी दस्तार बाकी। ये देखिए में रहेगा। यहाँ पर एक बच्चा और भी सलीम भाई का बच्चा जो यहीं से पढ़कर जो है फिर हनफिया सुन्निया में भी गालिबन आया इब्तिदाई में, और फिर मिजाज के एतबार से फिर उसको बाहर दाखिल किया गया सुल्तानिया, वो भी फारिग हो गया, उसने भी कुरान करीम को सुनाया। आप इन लोगों की कदर करें, बड़े कीमती लोग हैं। मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ प्रोग्रामात में, मुख्तलिफ इदारों में मेरा जाना होता है। वहाँ पर हम बहुत करीब से हालात को देखते हैं, उसको महसूस करते हैं कि जहाँ जो एक टीम आपको मिली है, जो अफराद आपको मिले काम करने के हवाले से, मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब की शक्ल में उनके जो रुफ़का हैं और जो इंतज़ामिया है, यकीनन ये कहीं कहीं मिला करती है। इनकी आप कदर करें, आप इनको काम के हवाले से आज़ाद छोड़ दें और जो कुछ उसके तकाज़े ज़ाहिरी एतबार से लग रहे हैं, सारे महल्ले के हर घर की ये ज़रूरत है, हर फर्द की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनके तकाज़ों को पूरा करें। खुद से आकर इनसे मालूमात है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ दरकार है, हम आपको ला कर देते हैं। अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में उनसे आप प्रभावित करें। बच्चियाँ भी पढ़ रही है, वो भी अपनी जमात में जा रही है, किताबें दरकार होगी, मुअल्लिमात की और ज़रूरत होगी, जहाँ पर हिस्सा बढ़ रहा है असातिज़ा की ज़रूरत होगी। ये आपका तरकीब देना आप भी अपने भी सवाब का बायस होगा और साथ आप खुद खर्च कर रहे हैं, उसका भी अजर आपको मिलेगा। लिहाजा आप जो है कम में ना गुजारें और अपने बच्चे खुशी के साथ खुद भी, इन्हें भी, आप भी अपने बच्चों को भी दाखिल करें। इस महल्ले का हर बच्चा, हर घर का बच्चा जो है इस मदरसे में दाखिला ले। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद आगे के लिए हनफिया सुन्निया के लिए है, फिर एजाज़ व इकराम वो फजीलतें जो आप हमेशा सुनते रहते हैं वो इंशाअल्लाह और भी मज़ीद सुनाई जाएगी। हमारे यहाँ जो जलसा है वहाँ पर भी सुनाई जाएगी, क्योंकि आप लोग काफ़ी वक्त दिए हैं, इसलिए मैं जो है इन प्रोग्रामात में जाता हूँ। इतनी देर बच्चे बैठ नहीं पाते, इतनी देर आप बैठते हैं, 10-12 मिनट तो बोलता हूँ, खत्म करता हूँ। रब करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए, इनके असातिज़ा के लोगों में दराज़गी अता फरमाए, इनके जुमला मुआविनीन के रिज़्क़ व रोज़गार में बरकतें अता फरमाए, इस महल्ले के तमाम अफराद को चाहे